Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, in the last video, we talked about evaluation and analysis of various programs. And for that, we discussed like evaluation and analysis can be done on what all parameters. Like we need to talk about the curriculum, we need to see the age appropriateness, we need to see the expertise of the resource persons who will be taking the various programs. So my dear educators, in this video, we'll be talking about like for evaluation of life skill program, what all methods can be used. So evaluating life skills programs conducted for secondary school students, it is important. Why? Because we want to determine their effectiveness and impact, like how much they are effective and what is their impact on the students. Now, here are some of the ways in which these programs can be evaluated. First of all, we can conduct surveys and questionnaires. Surveys and questionnaires, they can be used to gather feedback from the students. like जो भी स्टूडेंट्स ये अटेंड करेंगे प्रोग्राम्स उनसे हम फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं एंड दिस फीडबैक कैन हेल्प इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम. उस फीडबैक से हमें ये पता चलेगा वेदर दिस प्रोग्राम्स आर रियली इफेक्टिव और नॉट. और फीडबैक जो है वो पूरे डिटेल्ड फॉर्म जो होने चाहिए, चाहे इट कैन बी मैनुअल और इट कैन बी वेरियस गूगल फॉर्म्स, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स और एनी अदर फॉर्म्स दे आर अवेलेबल नाउ डेज. एटलीस्ट वी विल बी एबल टू हैव strengths and weaknesses of the programs so that we can improve the future programs. So first method is surveys and the questionnaires. Second is pre and post assessments can be done. Now, what is a pre-assessment? Counseling और मे बी गाइडेंस प्रोग्राम, लाइफ स्किल का कोई भी सेशन जो भी हम अटेंड करते हैं उसको अटेंड करने से पहले अगर एक असेसमेंट किया जाता है दैट इज प्री असेसमेंट, और उसको कंप्लीट करने के बाद का जो असेसमेंट है दैट इज नोन एज पोस्ट असेसमेंट. सो ये प्री एंड पोस्ट असेसमेंट दे कैन बी यूज टू मेजर चेंजेस इन नॉलेज, कि असेसमेंट से पहले उनकी नॉलेज क्या थी, उनके स्किल और एटीट्यूड्स क्या थे, and after the program what is the change in the knowledge, skills and attitudes of the attendees. And this approach can provide data to evaluate the program's effectiveness and measure the extent of learning and behavior changes. पता चलता है कि इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद में नॉलेज में, स्किल्स में, एटीट्यूड्स में कितना बदलाव आया है, कितनी चेंजेस आई हैं. और इसके अलावा another option can be used, that is observation. Observations can be used to evaluate how students apply the life skills they learned in the program. जो students ये program attend करेंगे उसके बाद में उनको observe करना कि वो किस तरीके से अपनी knowledge, skills और values जो उन्होंने gain किए हैं, जो attitudes gain किए हैं, उसको real world situations में how they are using it. इसके अलावा केस स्टडीज की जा सकती हैं. केस स्टडीज कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ लाइफ स्किल्स प्रोग्राम्स बाय एग्जामिनिंग द प्रोग्राम्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स स्टडीज. एक केस स्टडीज हम कैसे करते हैं, कोई पर्टिकुलर कोई खास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और मे बी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, राइट उनको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और उनकी जो इन्वायरमेंट के साथ उनकी रियल वर्ल्ड में जो इंटरेक्शन होती है उसको प्रॉपर उसका रिकॉर्ड बनाकर देखा जाता है कि बच्चे में क्या चेंज आया है. तो केस स्टडीज इसमें कर सकते हैं. इसके अलावा वी कैन गो अहेड विद द फोकस ग्रुप्स. Focus groups can be used to gather feedback from the students, parents, teachers about the program's effectiveness. And this approach can help identify areas of improvement and provide insights into the program's impact on students. Like एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिन्होंने ये अगर प्रोग्राम अटेंड किया है और उसके बाद में वो स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर, उन सब से फीडबैक लिया जा सकता है सो दैट यू विल बी एबल टू हैव दैट फीडबैक फ्रॉम different perspectives from the various individuals who are related or maybe who are directly indirectly affecting those students. So you will be able to get that kind of feedback. Now if I talk about cost benefit analysis, that can be used to evaluate the program's economic benefits, right? How economically your program is beneficial for the students, whether it is a worthwhile investment, यहाँ पे पैसा खर्च करना worth it है. This approach can help policymakers make informed decisions about allocating resources for future programs. So कि जो policies makers होते हैं, अगर वो ऐसे
कोर्सेज के लिए अपना फाइनेंस इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको ये पता हो कि इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, इसको आगे वेदर इन द लॉन्ग रन दिस प्रोग्राम विल बी हेल्पफुल, विल बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द कम्युनिटी, or they have to make some changes or maybe invest in some another programs. Now, overall, if we talk about evaluating life skills programs conducted for secondary school students, it requires a comprehensive approach that considers various factors that we have already discussed: goals, objectives, and methods. So this evaluation should be ongoing, right? It should not be a one-time task and informed by a feedback from the students, teachers, parents, and other stakeholders to ensure the program is effective and it meets the needs of the students. So my dear educators, when this question will be asked is the exam, what you have to do, you have to talk about various parameters and then you can talk about the different methods. As in the last video, we talked about various parameters that can be considered while evaluating such programs. And we talked about evaluation of such programs. And if I go ahead with the analysis of the life skills programs, let me revise it quickly. Analysis of the life skill program can be done on various factors. First of all, if I talk about the curriculum is an essential aspect of life skills program. करिकुलम कैसा होना चाहिए? वेल डिजाइंड, अलाइंड विद द प्रोग्राम्स गोल, जो प्रोग्राम का हमारा गोल है, ऑब्जेक्टिव है, तो करिकुलम उसके साथ बिल्कुल सिंक या वेल डिजाइंड या अलाइंड होना चाहिए. और ऑल्सो इट शुड बी एज अप्रोप्रिएट, it should be relevant and engaging for the secondary school students. हम secondary school students की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा ये जो पूरा प्रोग्राम है एमएड में, ये जो हमारा एग्जाम है पेपर नंबर 14, ये है लाइफ स्किल्स एजुकेशन एट द सीनियर सेकेंडरी स्कूल. तो हम उन बच्चों को ही फोकस करके इसके बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज this is for senior secondary students and there is another paper that is for the elementary school students. So एज पर जिस कॉलेज से, जिस यूनिवर्सिटी से आप एमएड का प्रोग्राम कर रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पेपर चूज किया है फॉर योर एमएड एग्जाम्स. नाउ इफ आई गो अहेड आफ्टर करिकुलम, सबसे पहले तो करिकुलम कैसा हो? वेल डिजाइंड हो, गोल्स और ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड हो, एज अप्रोप्रिएट हो, रेलेवेंट एंड एंगेजिंग हो. तो टीचिंग मेथड्स की अगर हम बात करते हैं, तो टीचिंग मेथड्स यूज इन द प्रोग्राम शुड बी कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? देखिए, हम टीचिंग कैसे फोकस करते हैं? टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इंटरैक्टिव, हैंड्स ऑन, एक्सपीरियंशियल, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली एंगेज हो सके, ना कि वो सिर्फ पैसिव लिसनर हो. तो इसके अलावा टेक्नोलॉजी को उसमें यूज कर सकते हैं, मल्टीमीडिया कैन बी यूज, ताकि उनका लर्निंग एक्सपीरियंस और भी ज्यादा एनहेंस हो सके. और जो टीचर्स ये सब टीचिंग मेथड्स यूज करेंगे, उनकी ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है. So teachers who conduct the life skill programs should adequately be trained and have necessary skills and expertise. देखिए, उनमें क्या ट्रेंड होने चाहिए, उनमें प्रॉपर स्किल्स होने चाहिए. दे शुड बी एक्सपर्टीज टू deliver the program effectively, and teachers training can ensure that program is implemented as intended. एटलीस्ट उससे हमें पता चलेगा कि प्रोग्राम जो है ऐसे इम्प्लीमेंट हो रहा है जैसा उसको इंटेंड किया गया है, जैसा उसके लिए प्लान किया गया है. एंड द स्टूडेंट्स दे रिसीव हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन, तो उसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो बेहद जरूरी है. चलिए अब स्टूडेंट एंगेजमेंट की बात करते हैं. लाइफ स्किल प्रोग्राम्स शुड बी डिजाइन टू एंगेज स्टूडेंट्स. सबसे पहले हमने क्या बात किया कि एक्टिवली एंगेज होने चाहिए इन द लर्निंग प्रोसेस. और वो कब एक्टिवली एंगेज होंगे? अगर प्रोग्राम रेलेवेंट होगा, एज अप्रोप्रिएट होगा, उनकी डेली लाइफ से कनेक्टेड होगा और उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उसको एक्सप्लोर और अप्लाई करने की अपनी डेली लाइफ में, देन ओनली देयर एंगेजमेंट कैन बी ensured. If I talk about evaluation and feedback, हमने पहले बहुत सारे methods डिस्कस किए हैं. फीडबैक के लिए सर्वेस कंडक्ट किए जाते हैं, राइट? स्टूडेंट से, टीचर से प्री असेसमेंट या पोस्ट असेसमेंट भी करवाया जा सकता है फॉर दैट प्रोग्राम. हमें ये इंश्योर करना है कि जो इवेल्युएशन है दैट शुड बी फोकस्ड ऑन मेजरिंग लर्निंग आउटकम्स एंड प्रोग्राम्स इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स लाइफ. उसके लिए केस स्टडीज भी की जा सकती हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट उसे डेली लाइफ में जो है वो यूज कर रहे हैं. यू कैन गो हैड विद ऑब्जर्वेशन मैथड, मे बी सर्वे मैथड्स ऑल्सो. इफ आई गो टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी, राइट? सस्टेनेबिलिटी क्या है? लाइफ स्किल्स प्रोग्राम शुड बी डिजाइन टू बी सस्टेनेबल with clear plans for ongoing funding and support. उनका प्लान क्लियर होना चाहिए, सस्टेनेबल होने चाहिए, ताकि हम उसको will be able to provide funding and support.
राइट, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी फाइनेंशियल सपोर्टर्स हैं, ताकि वो उसमें फंडिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। एंड द प्रोग्राम शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू स्कूल्स ब्रॉडर करिकुलम एंड एक्टिविटीज। स्कूल का जो करिकुलम है उसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर वो इंटीग्रेट होना चाहिए। लाइफ स्किल्स को स्टैंड अलोन सब्जेक्ट की तरह अगर पढ़ाएंगे और सब्जेक्ट को उससे अलग रखेंगे, देन वी विल नॉट बी एबल टू अचीव आवर गोल ऑफ रियल लाइफ इंटीग्रेशन। तो उसके साथ कंप्लीटली इंटीग्रेटेड होना चाहिए। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी आपको कुछ एक एग्जांपल्स देके बताया है कि अगर सपोज मैथमेटिक्स में एक बच्चे कर रहे हैं, तो उसमें यू कैन गो हैड विद द इंटीग्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर बच्चा साइंसेस में कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहा है, सपोज दे आर टॉकिंग अबाउट बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, तो उनको कौन से यूज करते हैं, क्या वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वही उन प्रीच कर रहे हैं, या मे बी वो कह तो ये रहे हैं, अवेयरनेस तो इस चीज की क्रिएट कर रहे हैं कि वी शुड गो हैड विद सस्टेनेबिलिटी, वी शुड यूज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, बट वो अपनी डेली लाइफ में नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस या प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व करना होगा, केस स्टडीज करनी होंगी, सर्वेस कंडक्ट करने होंगे, फोकस ग्रुप्स के ऊपर हम उसके थ्रू अब डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखकर हम इसका इवेल्युएशन और एनालिसिस कर सकते हैं। तो आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इवेल्युएट एंड एनालाइज द वेरियस लाइफ स्किल्स प्रोग्राम, तो आपको क्या करना है, डिफरेंट पैरामीटर्स कि हम किस किस पैरामीटर को ध्यान में रखकर इवेल्युएट और एनालिसिस करते हैं, इवेल्युएशन के लिए मेथड्स कौन से यूज कर सकते हैं, और उसका जब हम एनालिसिस करते हैं, जैसा कि हमने अभी इसी वीडियो में ही अभी हमने डिस्कस किया है कि हमें क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, कि टीचिंग मेथड्स कैसे हो, करिकुलम कैसा हो, टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं, स्टूडेंट एंगेजमेंट का लेवल क्या है, इवेल्युएशन या फीडबैक का स्टेटस क्या है, वेदर दे आर सस्टेनेबल और नॉट। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट इवेल्युएशन एंड एनालिसिस, right, of the life skills program. So in the next video we shall talk about highs and lows of life skills programs, right? What are the pros and cons, what are the highs and lows of life skills program? So stay tuned to Mentoring the Mentors. Have a nice day. Like, subscribe and share. Thank you.